My dear students, welcome to Methodological. In this session, we'll be learning a very important topic, mass point geometry. This particular topic, this technique will make you solve problems, complex problems of geometry very easily. Let us learn the technique. Start करते हैं और शुरू से लेकर एंड तक पूरे सेशन को वन गो में देखना, सारी बातें समझ में आएंगी एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट वंस एंड फॉर ऑल. इसके बाद कभी तुम्हें मास पॉइंट ज्योमेट्री में डाउट नहीं रहेगा एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व मेनी प्रॉब्लम्स यूजिंग दिस. स्टार्ट करते हैं. So in mass point geometry, we will be using ratios of lengths to solve the problems. Let us start with the basic. There is a lever, there is a something hanging on a lever, okay, and there are two masses m1 and m2, okay, and length of these points, these lines are L1 and L2. So since this is hanging in balance, this is hanging in balance, so L1 into m1 should be equal to L2 into m2, yani length from the center, from this point, multiplied by weight that is hanging. So L1 into m1, this should be equal to L2 into m2. These two should be equal, and if these are equal, then L1 by L2 will be equal to m2 by m1. क्या ये पार्ट क्लियर है? इज दिस क्लियर? ठीक है, ओके. So basically the whole point is that lengths will be inversely proportional to the masses. L1 into m1, length into mass is constant for both. So L1 into m1 is equal to L2 into m2. So L1 by L2 will be equal to m2 into m1. And on this hinge, जहाँ पे कि पूरा weight support हो रहा है, so at this hinge the weight will be m1 plus m2. Example से समझते हैं. So let us say there is a seller with a balance. ठीक है, there is a seller with a balance. If he is an honest seller, then these lengths will be equal. L1 will be equal to L2. 1:1 का ratio होगा. And hence, whatever weight he is putting on, let us say he is putting 2 kg weight, so he'll be giving you 2 kg items. Whatever item he is giving to you, that will also be 2 kg. यानी कि weights will be equal because m1 into L1 will be equal to m2 into L2, and since L1 and L2 are equal, so L1 by L2 is equal to m2 by m1, but since both are equal to same, तो 1 by 1 यानी कि m1 and m2 will also be equal. ठीक है, m1 and m2 will also be equal. But just in case the seller is not honest seller, he is double smart. ठीक है, तुम गए उसके पास, तुमने बार्गेन किया, उसने कहा अच्छा चलो ठीक है, सस्ता कर दिया तुम्हारे लिए आइटम, बट देंगे उतना ही जितना देना है. सो व्हाट ही डज दैट, लेट अस से वन साइड इज 20 centimeter and second side of the balance is 30 centimeter, and weight on one side is m1 and weight on the second side is m2. So m1 into 20 will be equal to m2 into 30, and hence m1 by m2 will be equal to 30 by 20 यानी 3 by 2. So if m1 is equal to 3 kilograms, m2 will be equal to 2 kg, और तुम्हारा perfectly balance होगा इसके बाद भी, जबकि weights are not equal. So basically the point is that he will be putting 3 1 kg weights, तो 3 kg का तुमसे पैसा ले लेगा, but he will only be giving you item equal to 2 kgs because he is using a faulty balance. He is using a faulty balance with unequal sides. क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, तो हम बस यही सेम टेक्निक अपनी यूज करेंगे बार बार अपने क्वेश्चंस में, कॉन्सेप्ट में. ओके, सो एग्जांपल्स देते हैं कुछ. लेट अस से वी हैव अ लाइन AB and there is a point on the line, that is point is let us say D. ठीक है, और the ratio is AD is to DB का ratio is 3:5. The ratio is 3:5. ठीक है, so what should be the weights at A and B that we should assign?
बिकॉज हम यहाँ पे वेट्स असाइन करेंगे सो दैट हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सके. व्हाट शुड बी दोज वेट्स? दोज वेट्स शुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेशियो. यानी कि दिस वेट शुड बी 5 एंड द अदर वेट शुड बी 3. एक और एग्जांपल लेते हैं. We have a line PQ and the pivot, this is X, and the ratio of PX is to QX, this is 4 is to 7. So what should be the weights that will be assigning? Cross कर दो. Inversely proportional 7 and 4 should be the weights. Is this clear? And weight at the hinge at the pivot, this will be summation of these two, 5 and 3. This should be equal to 8. Similarly यहाँ पे क्या होगा? 7 plus 4, this should be equal to 11. क्या बात समझ में आती है? ठीक है. Now let us make a proper diagram of a triangle. So ABC is our triangle and there are two lines AD and BE. The two lines are there, AD and BE, and the ratio of BD and DC, this is 3 is to 2. BD is to CD, this is 3 is to 2. While ratio of AE and CE, this is equal to 5 is to 3. This is the information that is given to us. Okay. Clear? And we need to find out if this intersection point, this is X, then we need to find out what is the ratio of BX and XE. What is this ratio? This is our question. अभी स्टार्ट मत करना क्योंकि अभी सारी टेक्निक्स हमने सीखी नहीं है, एक एक बात को समझेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल BD और CD का रेशियो है 3:2 का. दिस रेशियो इज 3:2 एंड AE और CE का रेशियो क्या है? 5:3 का. दिस रेशियो इज 5:3. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस ऑन लाइन BC. लाइन BC पे फोकस करो. तो ऑन लाइन BC इज हैंगिंग एट पॉइंट D. D इज द पाइवॉट और 3:2 का रेशियो है. तो BD और CD का रेशियो क्या है? 3x और 2x का. 3:2 का रेशियो है. सो अगर 3 और 2 का रेशियो है तो जो वेट्स हम हैंग करेंगे B और C पे वो क्या होंगे? दो शुड बी इन अपोजिट रेशियो. लेकिन दिस शुड बी 2 and this should be 3. Isn't it so? This should be 2 and this should be 3. क्या ये बात क्लियर है? तो 2 और 3 के रेशियो में होने चाहिए. At B the weight should be 2 units, at C the weight should be 3 units, but additionally हमारी लाइन एक और एक्स्ट्रा है, that line is AC. तो उस पर ही फोकस करना है. On AC the ratio is 5:3. तो the corresponding weight at C should be 5 units. The corresponding weight at C should be 5 units and corresponding weight at A should be 3 units. बट प्रॉब्लम यह है कि ऑलरेडी हम 3 kg का वेट हैंग कर चुके हैं. 3 kg का वेट हमने हैंग कर दिया है. तो दिस 5 यूनिट्स इज इक्वल टू 3 किलोग्राम्स. ये 5 यूनिट हमारा 3 kg के बराबर है. तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा? इफ 5 यूनिट इज 3 kg, 1 यूनिट विल बी 3/5 kg यानी 0.6 kg. एंड अकॉर्डिंगली 3 यूनिट्स शुड बी असाइंड एट पॉइंट A. तो A पे कितना असाइन करोगे? 3 इंटू 0.6, 1.8 किलोग्राम्स. पहले बस एक बार बात को समझ लो, उसके बाद में इसको सिंपल करेंगे, डेसिमल में काम नहीं करेंगे, बट पहले इसको समझ लो. तो 1.8 हमने असाइन कर दिया A पे, C पे असाइंड है 3 और B पे असाइंड है 2. क्या यहां तक बात समझ में आती है? इज दिस क्लियर? तो पॉइंट D पे वेट कितना होगा? वेट एट पॉइंट D विल बी 2 + 3, 5 यूनिट्स या 5 kg वेट होगा. और पॉइंट E पे वेट कितना होगा? बिकॉज E पे अपना AC भी तो बैलेंस कर रहा है. ठीक है. सो कितना वेट होगा? 3 + 1.8. वेट एट E विल बी 4.8. इज दिस पार्ट क्लियर? क्वेश्चन ने पूछा है BX और XC का रेशियो कितना है. नाउ फोकस. वेट एट B इज 2 kg, वेट एट E इज 4.8 kg. तो X पे टोटल वेट कितना होगा? X हमारा हिंज है बीच में, X पे वेट होगा 2 + 4.8 यानी कि दिस वेट विल बी 6.8. एंड लेंथ का रेशियो क्या होगा? 4.8 वेट आया हमारा E पे, तो BX शुड बी करस्पॉन्डिंग टू 4.8 और 2 वेट आया है B पे, तो XE शुड बी करस्पॉन्डिंग टू 2. तो रेशियो हमारा हो जाएगा 4.8:2. 4.8:2 सिंप्लीफाई कर लोगे इसको, तो दिस विल बी इक्वल टू 48:20 और 4 से चला जाएगा, सो दिस विल बी 12:5. द रेशियो शुड बी 12:5. क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है. बट इसको बेटर तरीके से करते हैं, इतना डेसिमल वगैरह में नहीं करेंगे. तो एक बार फिर से डायग्राम बनाते हैं, फ्रेश डायग्राम बनाते हैं.
तुम भी अपने एंड पे फ्रेश डायग्राम बनाना. A, B, C and the other lines were AD and BE intersecting at X. AD and BE, these two are intersecting at X, point X. Okay, और ratios given थे हमारे BD CD is 3:2 and AEC is 5:3. Now focus on the point that is common for both ratios. कौन सा point है हमारा which is common for both ratios? That point is point C. ठीक है, point C is common. तो point C को weight as per line BC हमें कितना assign करना है? As per line BC the weight assigned to point C should be 3 units and as per line AC the weight assigned should be equal to 5 units. तो 3 units होना चाहिए as per line BC and 5 units as per line AC. तो 3 into 5 will assign weight equal to 15 kgs at point C. ठीक है, तो 3 यूनिट्स. अब लाइन BC पे फोकस करो. लाइन BC पे 3 यूनिट हमारा कितना है? 15 है. 3 यूनिट्स इज इक्वल टू 15. सो इफ 3 यूनिट्स इज इक्वल टू 15, 1 यूनिट कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा. 1 यूनिट विल बी इक्वल टू 5. तो 2 यूनिट्स कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा. सो दिस मस्ट बी इक्वल टू 10. तो वेट एट पॉइंट B विल बी इक्वल टू 10 और पॉइंट D पे वेट कितना आ जाएगा? समेशन ऑफ दीज टू 10 प्लस 15. सो दैट वेट विल बी इक्वल टू 25. नाउ फोकस ऑन लाइन AC. लाइन AC पे 5 units is corresponding to 15. तो 1 unit will be corresponding to 3. So 3 units का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 into 3 9 हो जाएगा. So weight at point A will be equal to 9 और point E पे weight कितना होगा? Summation of these two. तो 9 plus 15 का sum that will be 24. तो point E पे weight है 24, point B पे weight है 10. अब फोकस करो X पे. तो X पे weight कितना होगा? दोनों का सम होगा. 10 plus 24 34 हो जाएगा. 34 हो जाएगा. एंड लाइन का लेंथ करस्पॉन्डिंग क्या होगा? अपोजिट साइड में जाएगा. तो 10 लेंथ होगा फॉर XE और 24 लेंथ होगा फॉर BX. तो 24:10 विल बी अवर रेशियो. रिक्वायर्ड रेशियो विल बी 24:10. यानी कि BX:XE शुड बी इक्वल टू 24:10 और 12:5 और दिस विल बी 12:5. क्या ये क्लियर है? ठीक है, क्या बात समझ में आती है? एक और एग्जांपल लेते हैं सो दैट और क्लैरिटी है. ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल, और इस बार तुम भी साथ में प्रैक्टिस करना. ठीक है, पहले देखना नहीं है, पहले खुद से सॉल्व करने का कोशिश करना है. अब नाउ यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट. गलतियां होंगी, गलतियां करो, कोई दिक्कत नहीं है. गलतियां करो, रोज करो, हर वक्त करो. बस सेम गलती बार बार नहीं करनी है, गलती से सीखना है. सो ट्रायंगल इज ABC and the lines are BD and CE. ड्रॉ करते हैं BD and CE. Okay, now ratios, let us say this point is X, so ratio is 5:3 for BX is to XD and for AD is to CD the ratio is 7:4. Okay, so these are the given ratios. अब सॉल्व करते हैं फॉर दिस ट्रायंगल. तो BX is to XD is 5:3 और AD is to DC is 7:4. सबसे पहला पॉइंट, कॉमन पॉइंट कौन सा है ऑन बोथ दीज लाइंस? BD एंड AC. कॉमन पॉइंट कौन सा है? कॉमन पॉइंट इज पॉइंट नंबर D. तो देखो पॉइंट नंबर D को हमें क्या वेट असाइन करना है. तो BD पे फोकस करोगे तो कहां पे वेट असाइन करोगे? दिस 5 शुड बी असाइन टू पॉइंट D. इजंट इट सो? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो अपोजिट साइड वाला वेट असाइन होगा, 5 असाइन होगा. और एज पर AC, क्योंकि D हमारा पाइवॉट है तो AC पे कितना वेट असाइन होगा? AC के अकॉर्डिंग 7 + 4 11. तो 5 असाइन होना है एज पर BD और 11 असाइन होना है एज पर AC. तो 5 × 11 D पे वेट हमने असाइन कर दिया 55 असाइन कर दिया. और जैसे ही 55 वेट असाइन कर दिया तो 7 + 4 टोटल 11 यूनिट्स इज इक्वल टू 55. यानी कि 1 यूनिट विल बी इक्वल टू 5. टोटल 11 इज इक्वल टू 55, 1 यूनिट विल बी इक्वल टू 5. और अगर 1 यूनिट हमारा 5 है तो 7 यूनिट्स विल बी 7 × 5. सो 35 वेट असाइन हो जाएगा पॉइंट C को. और 4 यूनिट यानी 4 × 5 20 वेट असाइन हो जाएगा पॉइंट A को. इज दिस क्लियर? सिमिलरली सिंस 5 यूनिट्स इज इक्वल टू 55 यानी कि 1 यूनिट कितना हो जाएगा? 11 फॉर लाइन BD. AC पे तो हो गया काम, BD पे फोकस करो. तो ऑन BD 5 यूनिट इज 55, 1 यूनिट इज इक्वल टू 11. तो 3 यूनिट हमारा हो जाएगा इक्वल टू 33. तो पॉइंट B पे
वेट विल बी 33 और पॉइंट एक्स क्योंकि सेंटर है, पाइवॉट है, तो यहाँ पे वेट कितना होगा 33 प्लस 55, टोटल वेट विल बी 88 होगा। क्या बात समझ में आ रही है? 88 वेट हो जाएगा टोटल। नाउ फोकस ऑन लाइन ईसी। नाउ ई एक्स सी पे फोकस करो। एक्स पे वेट है 88, सी पे वेट है 35, ई पे वेट कितना होगा? एक्स पाइवॉट है हमारा, एक्स पे जो वेट है दैट इज समेशन ऑफ वेट्स एट ई एंड सी। सी पे वेट है 35, तो ई पे वेट कितना हो जाएगा? 88 माइनस 35, 88 माइनस 35 यानी कि वेट विल बी 53 आ जाएगा। और रेशियो क्या आएगा अकॉर्डिंगली? इफ दिस वेट इज 53, दिस वेट इज 35, तो रेशियो हमारा जस्ट ऑपोजिट होगा, यानी कि दिस विल बी 35 एंड दिस विल बी 53, तो रेशियो विल बी 35:53। क्या ये क्लियर है? इज दिस पार्ट क्लियर? एडिशनली क्योंकि वेट हमारा 53 है, यहाँ पे 53 नोट कर लेते हैं, वेरीफाई कर सकते हो। देखो सम यहाँ पे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पॉइंट ई पाइवॉट है हमारा 33 प्लस 20, 53 वेट आ रहा है। और अगर रेशियो चाहिए हो फॉर लाइन ए बी तो दैट रेशियो विल बी 20:33। तो जो भी रेशियो हम निकाल सकते थे इस ट्रायंगल में निकाल लिया। क्या ये बात समझ में आता है? इज दिस मच क्लियर? क्योंकि अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे प्रॉपर। ठीक है, क्लियर है? स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। So first question, D is the midpoint of side BC of triangle ABC. Point E lies on AC such that CE is equal to 1/3 AC. BE and AD intersect at G. So what is AG by GD? Pause the video. Take your time. Solve it. गलती हो, नहीं समझ में आए, सॉल्यूशन तो देखोगे ही, बट पहले अपने एंड पे ट्राई करो। ठीक है? सो आई होप कि तुमने ट्राई कर लिया होगा। एक सेकेंड। So D is the midpoint of side BC in triangle ABC. तो D तो midpoint है, and if D is midpoint तो रेशियो तो 1:1 हो गया for BD and DC. Point E lies on AC such that CE is equal to 1/3 AC. तो CE is 1/3 AC, very important. यहाँ पे ध्यान से देखो, गलती नहीं करनी है। CE हमारा 1/3 AC यानी CE by AC का रेशियो गिवन है, that is 1/3. तो अगर CE हमारा 1 यूनिट है, AC 3 यूनिट्स है, so if this is point E, if this is 1 यूनिट, तो AE हमारा कितना होगा? 2 यूनिट्स होगा, 3 यूनिट्स नहीं होगा, ये ध्यान रखना। यहाँ पे ये गलती होने का स्कोप है क्योंकि CE by AC का रेशियो गिवन है, CE by AE का रेशियो गिवन नहीं है। तो अगर AC टोटल 3 यूनिट्स है, CE 1 है, तो AE विल बी 2, तो 2:1 का रेशियो आएगा फाइनली। ठीक है, ड्रॉ कर देते हैं, BE को ड्रॉ कर लेते हैं और AD को ड्रॉ कर लेते हैं। क्वेश्चन आस्किंग AG इज बाई GD क्या होगा, वेयर G इज द इंटरसेक्शन पॉइंट। ओके, सो कॉमन पॉइंट क्या है हमारा? कॉमन पॉइंट किसका कॉमन पॉइंट देखना है हमें? जो लाइंस का हमें रेशियो गिवन है उन लाइंस का कॉमन पॉइंट देखना है। सो BC का रेशियो गिवन है और AC का रेशियो गिवन है, तो कॉमन पॉइंट इज अवर पॉइंट C। पॉइंट C इज द कॉमन पॉइंट, और एज पर लाइन BC पॉइंट C पे वेट आना चाहिए 1 यूनिट, एंड एज पर लाइन AC पॉइंट C पे वेट आएगा 2 यूनिट्स। तो 1 और 2 का एलसीएम आ जाएगा हमारा 2, तो पॉइंट C पे वेट हमने रख दिया 2 kg। 2 kg वेट एट पॉइंट C। अब क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 2 kg है फॉर लाइन BC, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 kg होगी फॉर पॉइंट B एज वेल। सिमिलरली फॉर लाइन AC 2 यूनिट की वैल्यू 2 kg है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 1 kg। सो 1 यूनिट विल बी इक्वल टू 1 kg। एडिशनली D हमारा पाइवॉट है, पाइवॉट पे वेट कितना होगा? 2 + 2 4 यूनिट आ जाएगा। और सिमिलरली यहाँ पे हमारा पाइवॉट क्या है? E है, तो E पे वेट कितना होगा? 1 + 2 3 kg है, 3 यूनिट से वेट आ जाएगा। क्लियर है? अब बात करते हैं AD लाइन की। सो ऑन AD लाइन एट पाइवॉट D वेट कितना है? 4 है, D पे वेट 4 है, A पे 1 है, तो G पे वेट कितना होगा? बिकॉज G इज द पाइवॉट ऑन लाइन AD, तो G पे वेट कितना होगा? 4 + 1 5 होगा। और रेशियोज क्या आ जाएंगे लाइन के? 4 वैल्यू यहां पे आ जाएगी और 1 ऑन द ऑपोजिट साइड, तो 4:1 का रेशियो आ जाएगा। तो AG बाय GD विल बी इक्वल टू 4/1। इज दिस क्लियर? लेकिन जब सॉल्व कर ही रहे हैं तो साथ में एक और लाइन हमें दिख रही है यहाँ पे, दैट इज लाइन BE, तो उस पर भी सॉल्व कर लेते हैं। सो लाइन BE पे फोकस करो, फ्रेश सेपरेटली बना लेते हैं। एट पॉइंट B वेट इज 2 kg, एट पॉइंट E वेट इज 3 kg, और G पाइवॉट पे वेट कितना है? 5 kg है। 5 kg ऑलरेडी हमने 5 लिखा हुआ, और यहां से भी मैच करना चाहिए, 2 + 3 5 आ रहा है। ठीक है, सो दैट इज मैचिंग। तो लाइन की लेंथ कितना हो जाएगा? 3:2।
तो रेशियो ऑफ लाइन लेंथ विल बी 3:2 फॉर BG:G। अब क्वेश्चन कुछ भी पूछेगा एग्जाम में तो हम आंसर कर पाएंगे। इज दैट पार्ट क्लियर? क्या ये समझ में आता है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन ट्रायंगल ABC, P is the midpoint of side AC and Q is a point on side AB such that QC bisects PB. If AQ is equal to 36, then what is the length of QB? QB का लेंथ क्या होगा? सबसे पहला काम बनाएंगे डायग्राम। ज्योमेट्री में सबसे पहला काम बनाएंगे डायग्राम, इसके बाद में बढ़ेंगे आगे। सो ट्रायंगल ABC is there. So in triangle ABC, P is the midpoint of side AC. So AP is to PC is 1:1. Q is a point on side AB such that QC bisects PB. So Q is a point on side AB such that QC bisect करता है PB को, और bisect करने का मतलब क्या हुआ कि PB को exactly मिड पॉइंट पे काटता है, मिड पॉइंट पे bisect करता है QC, तो बस मिड पॉइंट से कनेक्ट कर दो C को और एक्सटेंड कर दो उसको AB तक। So this will be point Q, and if this point is let us say X, ठीक है, if this point is let us say X, in that case BX is to XP क्या होगा? 1:1 होगा, because these two are equal, so AB 1:1 होगा। Then question is asking if AQ is 36, तो what will be length of QB? So हमें AB लाइन पे फोकस करना है अल्टीमेटली, बट फिलहाल गिवन रेशियोज किसके लिए? फॉर BP एंड AC। तो BP और AC के रेशियोज गिवन है, कौन सा पॉइंट कॉमन है जहां के लिए हमें कंसिडर करना पड़ेगा? दैट पॉइंट इज पॉइंट नंबर P। नंबर तो नहीं है बट पॉइंट P, ओके, तो पॉइंट P इज देयर। सो पॉइंट P के लिए एज पर BP द रेशियो विल बी इक्वल टू 1 यूनिट, एंड एज पर AC, क्योंकि AC का पाइवोट है तो रेशियो विल बी इक्वल टू 1 + 1 2 यूनिट्स, तो 2 यूनिट्स मान लेते हैं यहाँ पे, सिंपल वैल्यूज है। एक सेकंड, हाँ बाइसेक ही कर रहा है ना, मिड पॉइंट है, बाइसेक कर रहा है, हाँ ठीक है, करेक्ट है। तो ठीक है, 2 यूनिट्स हमने वेट मान लिया एट पॉइंट P। तो अगर पॉइंट P पे वेट है 2 यूनिट्स, तो AC लाइन पे देखो, AC लाइन पे रेशियो है 1:1 का, ठीक है, 2 यूनिट्स की वैल्यू आ रही है 2 यूनिट्स, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 यूनिट। सो एट पॉइंट C वेट विल 1 kg, एट पॉइंट A वेट विल ऑल्सो बी 1 kg, सिंपल वैल्यू है। ठीक है, अब BP पे फोकस करो, BP पे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 2 kg है, 2 यूनिट्स है। सो एट पॉइंट B कितना वेट आ जाएगा? 1 यूनिट, यानी कि 2 kg ही वेट आएगा, 2 kg ही वेट आएगा। नाउ फोकस ऑन लाइन AB, बिल्कुल सिंपल है, क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, सो 2:1 का रेशियो आएगा, बट किस ऑर्डर में आएगा? 2 वेट आ रहा है हमारा पॉइंट B पे और 1 वेट आ रहा है पॉइंट A पे, तो लाइन लेंथ क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा यहाँ पे और 2 आ जाएगा ऑन द ऑपोजिट साइड, तो 1:2 का रेशियो आ जाएगा। बट हमसे पूछा किस ऑर्डर में है? AQ इज गिवन एज 36, ओके, लाइन को फ्रेश बना लेते हैं सेपरेटली। सो दिस इज अवर लाइन A, देन Q, देन B, एंड AQ इज 2 यूनिट्स और BQ इज 1 यूनिट, और हमें AQ की वैल्यू गिवन है 2 यूनिट्स इज इक्वल टू 36, यानी कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 18। सो हमारा आंसर आ जाएगा QB विल बी इक्वल टू 18, QB विल बी इक्वल टू 18। इज दिस क्लियर? ठीक है, जो चीजें रह गई हैं उनको भी कंप्लीट कर देते हैं, क्वेश्चन तो खत्म हो गया। बट पॉइंट Q, सिंस दिस इज अ पाइवोट, तो वेट कितना होगा? 2 + 1 3 यूनिट्स होगा, दिस वेट विल बी 3 यूनिट्स। और QC में अब फोकस करो, एट पॉइंट Q वेट इज 3 यूनिट्स, C पे वेट है 1 यूनिट, तो X पे वेट कितना आएगा? 4 आएगा, और ये मैच करना चाहिए। देखो QC पे अगर X पे वेट 4 आ रहा है तो BP के हिसाब से भी X पे वेट 4 ही आना चाहिए, दैट शुड बी मैचिंग। अगर मैच नहीं करे कभी भी तो समझ लेना कहीं ना कहीं पे तुमने गलती किया है, कहीं ना कहीं पे मिस्टेक किया है। ठीक है, सो एट पॉइंट X वेट इज 4, Q पे वेट है 3, C पे है 1, तो रेशियो क्या आ जाएगा? QX और XC का, QXC, तो Q पे वेट है 3, C पे है 1, तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, 1:3 का रेशियो आ जाएगा, 1:3 का रेशियो आ जाएगा। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। O is the in-center of a triangle ABC such that AO, BO and CO are extended such that they cut BC, CA and AB at points E, F and D respectively. If AO by OE is equal to 5/4 and CO by OD is equal to 3/2, then what is the value of BO by OF? Now O हमारा in-center है in this case, तो क्वेश्चन इज एक्जैक्टली द सेम। इन सेंटर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इन सेंटर ना भी लिखा होता तो भी क्वेश्चन सेम तरीके से ही सॉल्व करते। बट व्हाट इज इन सेंटर? इन सेंटर क्या होता है? इन सेंटर इज इंटरसेक्शन पॉइंट, इन सेंटर इज द सेंटर जहां से कि इंस्क्राइबिंग सर्कल हम ड्रॉ करते हैं फॉर ए ट्रायंगल, इजंट इट सो? और इंस्क्राइबिंग सर्कल क्या होता है? एंगल बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट।
So O is the intersection point of angle bisectors, isn't it so? In center is intersection point of angle bisectors. ठीक है, बहरहाल बनाते हैं डायग्राम. ज्योमेट्री में सबसे पहला काम बनाना डायग्राम. ABC इज द ट्रायंगल. और हमेशा एज्यूम नहीं करना है कि ABC है तो A के सामने ही D आएगा, बिकॉज इस क्वेश्चन में वैसा नहीं है. AO, BO एंड CO आर एक्सटेंडेड सच दैट दे कट BC, CA एंड EAB एट E, F एंड D. तो AO को एक्सटेंड कर रहे हो, E पे कट कर रहा है BC को, तो AE इज द लाइन. सिमिलरली BF इज द लाइन and CD is the line. Okay. And they are intersecting at point O. Concurrent lines are intersecting at point O. If AO by OE is equal to 5 by 4, so AO by OE is equal to 5 by 4, 5 is to 4. CO by OD is 3 is to 2. So CO by OD, that is 3 is to 2. Order is very important. Then question हमें solve करके बताना है BO by OF क्या होगा. ओके, पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट. अगेन लाइंस हमारी कौन सी है जिनका रेशियो गिवन है? AE एंड CD. AE एंड CD आर द लाइंस जिनके लिए रेशियो इज गिवन. तो कॉमन पॉइंट क्या है? कॉमन पॉइंट फॉर AE एंड CD इज पॉइंट नंबर O, पॉइंट O. AE और CD का कॉमन पॉइंट है पॉइंट O, विच इज द पाइवॉट फॉर बोथ द लाइंस. तो पाइवॉट है तो यहाँ पे वेट कितना असाइन होगा? दोनों का सम असाइन होगा. तो फॉर AE द वेट विल बी 5 + 4. फॉर एज पर AE दिस वेट शुड बी 9 यूनिट, 5 + 4, and as per CD the weight should be 2 + 3, 5 units. तो 9 असाइन करना है, 5 असाइन करना है, तो 9 × 5 असाइन कर दो. कर दिया असाइन. 9 × 5 45 असाइन कर दिया. ठीक है. सो 45 इज द वेट एट पॉइंट O. ओके, अब फोकस करो एक लाइन पे, CD पे फोकस करते हैं. तो CD पे द वेट असाइंड इज 45 और 2 + 3 कितना आ रहा है? 5 यूनिट्स. तो 5 यूनिट्स इज इक्वल टू 45, तो 1 यूनिट कितना आ जाएगा? 1 यूनिट विल बी इक्वल टू 9. एज पर CD 1 यूनिट इज इक्वल टू 9, तो 2 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 18 और 3 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी हमारी 27. नाउ फोकस ऑन AE लाइन. सो AE लाइन पे 5 + 4 टोटल 9 यूनिट्स है. 9 यूनिट्स है, 9 यूनिट्स की वैल्यू कितनी आ रही है? 45. तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 5 आएगी. 1 यूनिट विल बी इक्वल टू 5. तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 × 5 25 और 4 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 4 × 5 एक से, हाँ 20 आ जाएगी. क्या ये क्लियर है? ठीक है. नाउ E पे वेट है 25 और BC लाइन पे E हमारा पाइवॉट है. सो इफ E इज द पाइवॉट, E पे वेट है 25, C पे वेट है 18. तो E पे क्या होगा? B और C का कंबाइंड वेट होगा. C का वेट 18 है, E पे टोटल 25 है, तो B का वेट कितना होगा? 7 होगा. 7 होगा. सिमिलरली F इज द पाइवॉट ऑफ लाइन AC और A पे वेट है 20, C पे है 18, F पे वेट कितना हो जाएगा? 20 + 18 38. ठीक है. नाउ फोकस ऑन लाइन BF. तो B पे वेट है हमारा 7 का, F पे वेट है 38 का और O हमारा बीच में पाइवॉट है. O पे वेट कितना होगा? 7 + 38 यानी कि 45. बट BO OF का रेशियो क्या होगा? 38 वेट यहां पे आ जाएगा, 38 और 7 वेट आ जाएगा हमारा ऑपोजिट साइड पे OF पे. तो 38:7 विल बी आवर आंसर फॉर BO by OF. ऑर्डर ध्यान रखना है. तो 38/7 ऑप्शन B विल बी द आंसर. ऑप्शन B विल बी आवर आंसर. क्लियर है? सिमिलरली फोकस ऑन लाइन BA. लाइन BA पे फोकस करो. तो वेट एट B इज 7, वेट एट A इज 20. तो रेशियो क्या आ जाएगा BD और DA का? 20 विल बी फॉर BD करस्पॉन्डिंग और DA के लिए आ जाएगा 7. 20:7 का रेशियो आ जाएगा. 20:7 का रेशियो आ जाएगा और अकॉर्डिंगली जो बाकी लाइंस बच गए वहां पे रेशियो निकाल लोगे. फॉर BC द रेशियो विल बी 18:7. ऐसे ही AC के लिए भी निकालो. AC के लिए रेशियो क्या आ जाएगा? 18:20 आ जाएगा. ठीक है, 18:20 आ जाएगा. थोड़ा सा हॉच पॉच हो गया बट बात समझ पा रहे होगे. ठीक है, क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. Next question. In triangle ABC, D and E are 2 points on BC and AC such that
AD and BE intersect at point X. If area of triangles AEX and ABX and BXD are 40, 60 and 30 respectively, then find area of triangle ABC. What will be area of triangle ABC? So triangle ABC is there. D and E are the 2 points on BC and AC such that AD and B intersect at point X. ड्रॉ करते हैं. Triangle ABC. D and E are points on BC and AC such that AD and B intersect at point X. Okay. If area of triangles AEX, ABX and BXD are 40, 60 and 30. तो area of triangle AEX कितना है? This is X. AEX का area है 40. ABX का area है 60. And BXD का area है 30. So what should be the area of triangle ABC? What should be area of triangle ABC? Okay, हमें तो ratios ही पता है, बट यहाँ पे ratios given है, यहाँ पे तो areas given है, कैसे सॉल्व करेंगे? तो think about it. देखो, फोकस करो सबसे पहले on triangle ABE. Focus on ABE. So there is a point X and areas are 60 and 40. Okay. So on triangle ABE, there are two triangles ABX and AXE. ABX और AXE ये दो triangles है हमारे, ठीक है? Isn't it so? For these two triangles, height same है कि नहीं है? Height is same. So for both these triangles, height will be same. Height तो same है. So if height is same, and since triangle का area क्या होता है? Area for a triangle is equal to 1 by 2 into base into height. So if height is same, तो base के ratio में area distribute होगा. Isn't it so? तो area का ratio will be as good as base का ratio. Ratio of area will be as good as base का ratio. Ratio of base. Isn't it so? तो areas are 60 and 40 and height is equal, तो base का ratio क्या आ जाएगा? 60:40. Or more simply 3:2. तो bx is to xc will be 3:2. Is this part clear? ठीक है. Similarly focus on triangle ABD. ट्रायंगल ABD पे फोकस करो. तो ट्रायंगल ABD हमारा क्या कह रहा है? अगेन फॉर ट्रायंगल ABD एज वेल देयर आर टू ट्रायंगल्स ABX एंड BDX एंड फॉर बोथ दीज ट्रायंगल्स हाइट इज सेम. हाइट तो सेम होगा दोनों के लिए, तो यानी कि यहां भी बेस के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा. एरिया है 60 एंड 30, तो बेस रेशियो भी 60:30 यानी 2:1 होगा. 2:1 हो जाएगा. क्या ये बात समझ में आती है? क्योंकि अगर ये बात समझ में आ गई तो नाउ द क्वेश्चन इज फिनिश्ड. अब तो मास पॉइंट ज्योमेट्री से हो जाएगा इजीली. इजंट इट सो? फटाक से डायग्राम बनाते हैं फ्रेश पेज पे. ABC AD BE और रेशियो हमारा क्या आ गया था? फॉर BE द रेशियो इज 3:2. For AD, the ratio is 2:1. And this is point X. So common point क्या है? AD और B का common point is X. X is our pivot for both. 2 + 1 3 units और 3 + 2 5 units. तो as per AD weight should be 3 units. As per B weight should be 5 units. तो 3 और 5 दोनों होना चाहिए, यानी कि 3 × 5 कर दो. Weight at X should be 15 units. 15 यूनिट्स वेट होना चाहिए. और अगर 15 है तो अब बी पे फोकस करो. बीई पे टोटल वेट है 5. 5 की वैल्यू है 15, 1 की वैल्यू हो जाएगा 5 की वैल्यू 15, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगा 3. तो 3 यूनिट्स की वैल्यू हो जाएगी 3 × 3 9 हो जाएगा. और 2 यूनिट्स की वैल्यू हो जाएगी 2 × 3 यानी कि 6 हो जाएगा. सिमिलरली ऑन एडी, फोकस ऑन एडी. एडी पे एक्स पे वैल्यू है कितना? 15. 2 + 1 3 यूनिट्स की वैल्यू है 15, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 5. तो 1 यूनिट विल बी इक्वल टू 5. तो ए पे वेट आ जाएगा 5. 2 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 10, तो डी पे वेट आ जाएगा 10. Now D is pivot for line BC. B पे वेट आ रहा है 6, D पे आ रहा है 10, टोटल 10 आ रहा है. तो 6 अगर वेट है B पे, C पे वेट होना चाहिए 4. और ये मैच करेगा यहाँ पे भी. अब AC लाइन पे भी देखो मैच कर रहा है. Isn't it so? क्या ये पार्ट क्लियर है? क्वेश्चन में क्या पूछा था? फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. तो क्या रेशियोज हमने निकाल लिया है? क्या BD/DC का रेशियो निकाल पाएंगे? बिल्कुल निकाल पाएंगे. अब BD/DC का रेशियो क्या होगा? 4:6 होगा. 4:6 होगा. ऑपोजिट यानी कि 2:3 रेशियो आ जाएगा.
क्या AEC का रेशियो निकाल पाओगे? बिल्कुल निकाल पाओगे। क्या रेशियो आएगा? तो 4 आ जाएगा हमारा फॉर AE, और CE के लिए दिस विल बी 5, 4:5 का रेशियो आ जाएगा। ओके, हमें कौन कौन से ट्राइंगल्स का वैल्यूज गिवन है? 60, 40 एंड 30, दीज वैल्यूज आर गिवन। So for triangle ABE, the total area is 100, isn't it so? ABE के लिए टोटल एरिया 100 है, और बचा हुआ सेकंड ट्राइंगल कौन सा बचा हमारा? रिमेनिंग ट्राइंगल इज दिस ट्राइंगल BEC, और फॉर ABE एंड BEC, ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल BEC, for both of these triangles height is equal, height same है, and if height is same तो area will be in terms of in the ratio of base का रेशियो में होगा, यानी A/C जो हमारा आएगा वही सेम एरिया का भी रेशियो होगा। क्या ये पार्ट क्लियर है? और A/C हमने निकाल लिया, दैट इज 4:5, A/C is 4:5, so if A and C is 4:5, तो यही सेम हमारा एरिया का भी रेशियो होगा। एरिया विल ऑल्सो बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस रेशियो, और 4 यूनिट की वैल्यू हमें गिवन है। फॉर 4 यूनिट एरिया करस्पॉन्डिंग इज 100, तो 5 यूनिट के लिए एरिया कितना होगा? 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 25 आ गया 1 यूनिट का वैल्यू, तो 5 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा 5 × 25 यानी कि 125। तो टोटल एरिया फॉर ट्राइंगल ABC जो कि समेशन होगा दोनों का, दैट विल बी 100 + 125 यानी कि दैट विल बी 225। दिस एरिया विल बी 225। क्या ये बात समझ में आती है? टोटल एरिया हमारा 225 आ जाएगा, बिकॉज 100 आ गया है फॉर AB और हमें निकालना था फॉर BC एज वेल। ठीक है, तो हमारा क्योंकि हाइट सेम है फॉर बोथ दीज ट्राइंगल्स, सो एरिया विल बी करस्पॉन्डिंग टू रेशियो ऑफ साइड्स, यानी कि A/C रेशियो ऑफ बेसिस। तो A/C हमारा 4:5 आ रहा है, 4 यूनिट की वैल्यू 100 है, 1 यूनिट की वैल्यू 25 है, 5 यूनिट की वैल्यू आ जाएगा 125। टोटल एरिया विल बी 100 + 125 यानी कि 225। तो आंसर विल बी 225। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC is equal to 225. Isn't it amazing? Isn't it amazing? क्लियर है? ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। सो अब एक कॉन्सेप्ट करते हैं। आई गेस क्वेश्चंस तो ओवर हो गए। हाँ, अब एक कॉन्सेप्ट कर लेते हैं। लेट अस मेक अ फ्रेश डायग्राम। The triangle is ABC. Okay, and there are 3 segments. We are drawing 3 lines, 3 concurrent lines, AD, BE and CF. Now these lines are Sevians. What is a Sevian? Sevian is any line that connects a vertex with a point on opposite side. Any line that connects a vertex with a point on opposite side. So for example, AD is connecting vertex A with point D on line BC. So AD is a Sevian. Similarly, CF is connecting vertex C with the point F on line AB. So CF is also a Sevian. Similarly, BE is connecting vertex B with the point E on side AC. So BE is also a Sevian. So AD, BE, CF all are Sevians. In general, you have to understand that medians are Sevians. ठीक है, सो अब जो डिस्कस करेंगे ये मीडियंस पे भी अप्लाई होगा। मीडियंस आर सेवियंस। सिमिलरली एंगल बाइसेक्टर्स आर आल्सो सेवियंस। और जो पूरा मास पॉइंट ज्योमेट्री भी सीखा है ये भी सब अप्लाई होगा वहां पे। ठीक है, ये भी हमारा सेवियंस पे अप्लाई होगा। सारी चीजें क्लियर है? तो सेवियंस हमारी सेवियन इज बेसिकली एनी लाइन दैट कनेक्ट्स अ वर्टेक्स विद अ पॉइंट ऑन द ऑपोजिट साइड। ओके, सो लेट अस अज्यूम द साइड लेंथ्स इन दीज केसेस। AF का साइड लेंथ मान लेते हैं, लेट अस से स्मॉल a। For FB the side length let us say is small b, BD का side length C,
फॉर डी सी साइड लेंथ इज डी, ए बी सी डी, और सी का साइड लेंथ आ जाएगा ई, और फॉर ई ए साइड लेंथ विल बी इक्वल टू एफ. सो ए बी सी डी ई एफ दीज आर द साइड लेंथ्स. ओके, नाउ मास पॉइंट ज्योमेट्री अप्लाई करते हैं यहां पे भी. सो फोकस ऑन लाइन बीसी, लाइन बीसी पे फोकस करो. डी इज द पाइवट, डी इज द पाइवट, और बीसी और सीडी का लेंथ कितना है, सी और डी का रेशियो है. सी और डी लेंथ है तो सी और डी का रेशियो भी है. तो अगर सी और डी का रेशियो है, बी पे कितना वेट पुट करोगे और सी पे कितना वेट पुट करोगे, जस्ट ऑपोजिट, यानी कि बी पे वेट शुड बी डी और सी पे वेट शुड बी सी. तो डी और सी वेट्स होना चाहिए, isn't it so? डी एंड सी शुड बी द वेट्स. क्या ये क्लियर है? अब फोकस करते हैं लाइन ए बी पे. नाउ फोकस ऑन लाइन ए बी. लाइन ए बी पे एफ इज द पाइवट और रेशियो आ रहा है ए टू बी का. सो द वेट एट ए शुड बी बी एंड वेट एट बी शुड बी ए. बट प्रॉब्लम एक हो गया है. प्रॉब्लम क्या है कि ऑलरेडी हमने डी वेट असाइन कर दिया है. तो डी वेट हमने ऑलरेडी असाइन किया हुआ है बी पे, isn't it so? तो क्या करोगे, उसको मल्टीप्लाई कर दो ए से. ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर दो ए से, isn't it so? ठीक है, उसको ए से मल्टीप्लाई कर दो तो ए डी आ गया. बट अगर उसको ए से मल्टीप्लाई किया है तो सिमिलरली तुम्हें ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. कहां पे, अगर उसको ए से मल्टीप्लाई किया है, एक सेकंड, अगर उसको ए से मल्टीप्लाई किया है सो यहां पे वैल्यू आ गया है एडी. ठीक है, और तुम्हें रेशियो सेम रखना है, बी इज टू ए का ही रेशियो रखना है. तो वही सेम रेशियो इसके बाद भी रहना चाहिए मल्टीप्लाई करने के बाद में. तो अगर एडी वैल्यू आ गया है और रेशियो में रखना है बी इज टू ए का ही, तो क्या वैल्यू होना चाहिए एट पॉइंट ए, दैट वैल्यू शुड बी बी डी, यानी कि वहां पे भी डी से मल्टीप्लाई करोगे. सिमिलरली फॉर लाइन बी सी द रेशियो शुड बी सी टू डी ओनली. तो अगर डी की वैल्यू ए डी है तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इफ डी इज इक्वल टू ए डी, सी विल बी इक्वल टू ए सी, दैट विल बी इक्वल टू ए सी. isn't it so? एक बार फिर से इस बात को समझते हैं. एक सेकेंड, इन वैल्यूज को फिर से नोट डाउन कर लेते हैं. देखो, फोकस ऑन जस्ट टू लाइंस. द टू लाइंस आर ए बी एंड बी सी. कॉमन पॉइंट क्या है, ए बी और बी सी का कॉमन पॉइंट इज पॉइंट बी. ठीक है, सो एज पर लाइन ए बी द वेट शुड बी इक्वल टू ए एंड एज पर लाइन बी सी द वेट शुड बी इक्वल टू डी. तो ए इंटू डी शुड बी द वेट, लिख दिया हमने ए इंटू डी. ठीक है, नाउ ए डी इज द वेट करस्पॉन्डिंग टू ए. तो लाइन बी सी के एज पर लाइन बी सी ए इंटू डी इज द वेट, यानी कि वन यूनिट की वैल्यू कितनी है, डी है. तो ए यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, ए डी. तो बी यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, बी इंटू डी, यानी कि दिस शुड बी बी डी. नाउ फोकस ऑन लाइन बी सी. लाइन बी सी पे डी इज करस्पॉन्डिंग टू ए डी, यानी कि वन यूनिट की वैल्यू कितना है, ए है, मल्टीप्लाई ए से किया है तो सी शुड ऑल्सो मल्टीप्लाई बाई ए, दिस विल बी इक्वल टू ए सी. ओके, नाउ फोकस ऑन लाइन ए सी. तो ऑन लाइन ए सी पाइवट इज एट पॉइंट ई और यहां पे बैलेंस कर रही है पूरी लाइन ए सी. तो लाइन ए सी कब बैलेंस करेगी, वेट हमने पुट किया है ए पे बी डी और सी पे वेट पुट किया हमने ए सी. ठीक है, सो बी डी मल्टीप्लाई बाई वेट मल्टीप्लाइड बाई लेंथ ऑफ द लाइन विच इज इक्वल टू एफ शुड बी इक्वल फॉर बोथ दीज केसेस, यानी कि बी डी इंटू एफ, दिस शुड बी इक्वल टू ए सी इंटू ई. ठीक है, बेसिकली वेट m1 into L1 should be equal to m2 into L2. So accordingly BD into F is equal to AC into E. क्या ये रिजल्ट क्लियर है? BDF should be equal to ACE. ठीक है, अब B को डिवाइड कर देते हैं A से, D को डिवाइड कर देते हैं C से और F को डिवाइड कर देते हैं E से. सो एक बहुत प्यारा सा रिजल्ट मिलेगा हमें, दैट इज A by B into C by D into E by F. This is equal to 1. And this applies for all sequence A by B is equal to C by D is equal to E by F and that is equal to 1. This ratio is equal. This product is equal to 1. Okay. Fresh page पे लिखते हैं इसको. This result is Sevas theorem or Sevian theorem, whichever you name it. ठीक है, so Sevian हमने ड्रॉ की 3 ट्राइंगल ABC. Sevian हमने ड्रॉ की AD, B and CF. ठीक है, and a Sevian can be median or angle bisector or any other line that connects a vertex with opposite side का one point. ठीक है, तो median and angle bisector are one such particular example. So if this point is D
दिस इज ई, दिस इज एफ, ठीक है. सो अवर रेशियो इज ए एफ अपॉन एफ बी, बिकॉज रिजल्ट क्या था, ए बाई बी इंटू सी बाई डी इंटू ए बाई एफ. सो दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज ई, दिस इज एफ. तो ए बाई बी इंटू सी बाई डी यानी बी डी बाई डी सी इंटू ई बाई एफ यानी कि सी ई बाई ए ई. दिस इज इक्वल टू 1. दिस प्रोडक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू 1. ओके, सो ए बाई बी इंटू सी बाई डी इंटू ए बाई एफ, दिस इज इक्वल टू 1. ओके, एज पर सिवाज थ्योरम. क्लियर है. एक एग्जांपल लेते हैं इसका, एक क्वेश्चन कर लेते हैं. A, B, C, D, E, F. And let us say ratio of AF is to FB, that is 2:3, and B is to DC, this is equal to 5:4. So what will be ratio of CE is to EA? What will be ratio of CE is to EA? So 2/3 multiplied by 5/4 multiplied by CE by EA, this is equal to 1. So 5 into 2 is 10, 10/12 आ रहा है. तो CE by EA, this will be equal to 12/10. So that will be equal to 6/5. Our answer will be 6/5. Is this clear? ठीक है, क्या ये बात समझ में आती है? और आंसर विल बी 6/5. एक और एग्जांपल करते हैं, जस्ट इन केस गलती होने का स्कोप खत्म हो जाए. Okay, so AF is to FB का रेशियो इज 3:5. ठीक है, द रेशियो फॉर A is to CD, A is to CE, this is 5:4. So what will be ratio of CD by BD? रेशियो ऑफ CD by BD. पॉज द वीडियो और सॉल्व करो अपने एंड पे. ठीक है, सो AE by FB is 3/5 multiplied by BD by DC multiplied by CE by EA, which is 4/5, and this is equal to 1. एक डायरेक्शन में ही जाना है. ठीक है, सो दिस बिकम्स 12/25 into BD by DC is equal to 1. तो BD by DC will be equal to 25/12. और क्वेश्चन में क्या पूछा है, CD by BD पूछा है, तो आंसर अपोजिट होगा. आंसर भी 25/12 के बजाय 12/25, बिकॉज CD by BD will be 12/25. दिस विल बी आवर आंसर. और ऑप्शन में 12/25 की बजाय 25/12 गिवन हो सकता है या और कोई वैल्यू गिवन हो सकता है, तो ये गलती होने का स्कोप है यहाँ पे. क्लियर है, इतना ही रखते हैं सेशन में. और आई बिलीव जितना भी डिस्कस किया वो समझ में आया होगा और तुम्हें इस सेशन में बहुत मजा आया होगा, बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होंगी. एंड मेक श्योर टू गिव योर फीडबैक इन द कमेंट्स. इफ यू लाइक द सेशन देन मेक श्योर टू गिव योर फीडबैक. अगर सेशन पसंद आया तो साथ में सेशन को लाइक भी कर सकते हो. एंड इफ यू नॉट ऑलरेडी सब्सक्राइब टू द चैनल यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू इट. सो दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन एंड दैट्स ऑल. बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग.